السلام علیکم دوستوں، 13 اکتوبر 2025 کو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دل لاہور میں پاکستان تحریک لبیک اور اس کے رہنما سعد حسین رضوی کی جانب سے ایک بڑا بھاری پروٹیسٹ دیکھنے کو ملتا ہے مرید کے علاقے میں۔ ان کی منزل تھی اسلام آباد US ایمبیسی اور غزہ کے مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے انہوں نے یہ سفر شروع کیا تھا، لیکن یہ سب نہیں جانتے تھے کہ یہ پرامن دکھائی دینے والا پروٹیسٹ ایک بھیانک موڑ لے جائے گا۔ سینکڑوں کی تعداد میں جانیں گئیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے۔ دونوں طرف ہی ایک بڑا بھاری نقصان دیکھنے کو ملا۔ وجہ تھی اس پروٹیسٹ کی، آخر کیوں عام سا دکھائی دینے والا یہ پروٹیسٹ ایک بھیانک موڑ لے گیا، اور کیا پروٹیسٹرز پر اسٹریٹ فائر کرنا جائز بھی ہے یا نہیں، اور کیوں پاکستان میں ایک بہت بڑی بدامنی پر پاکستانی میڈیا خاموش رہا۔ آئیے گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ Attempting to stage a protest outside the US Embassy in the capital in support of Palestinians. Towards the police, locals reported major disruptions at key roads, which were shut down, and public transport was also halted. But the group fails to obtain official permission for the rally, while the group disputes that, claiming it had requested a group. یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جو کہ پہلے پاکستان کے اتہاس میں نہ ہوئی ہو۔ ایک پرامن احتجاج کسی بھی ملک میں رہنے والوں کا حق ہے۔ پرامن احتجاج بغیر اسلحہ کے کسی بھی اسمبلی ارکان اور عوام کا حق ہے، لیکن کیا پاکستان تحریک لبیک کی جانب سے کیا جانے والا احتجاج دہشت گردانہ یا پھر انتشار پھیلانے والا تھا، یا پھر پرامن طریقے سے اپنی بات کو منوانے کے لیے احتجاج؟ ہمارا کام حقائق کو آپ کی طرف پہنچانا ہے اور آپ کا کام ہماری حوصلہ افزائی کرنا۔ اگر ویڈیو ذرا سی بھی انفارمیٹیو لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، لائک اور اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ 10 اکتوبر 2025 ٹرمپ کی جانب سے 20 نکات رکھے جاتے ہیں کہ اگر تو تم یہ نکات ایکسیپٹ کرتے ہو تو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہوگا اور اسرائیلی اور فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے گا، لیکن یہ معاہدہ کس حد تک کامیاب رہا یہ سب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ 100 شہید اور 230 کو زخمی کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ایک ہفتے کے درمیان ہی ہوتا ہے، کوئی زیادہ گیپ نہیں ہوتا اس میں۔ اسرائیل کی جانب سے 19 اکتوبر کو ایک فضائی حملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاہدہ کامیاب ہوا اور کس طرح سے فلسطینیوں کو حلال کیا جا رہا ہے۔ خیر، ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے ملک کی جانب کہ ہمارے ملک میں اس کی وجہ سے کیا کیا ہوا۔ 13 اکتوبر 2025 کو ہونے والے احتجاج کو روکنے کے لیے پہلے ٹیئر گیس اور پھر احتجاجیوں پر ڈائریکٹ فائر کیے گئے۔ آفیشیلز کا کہنا ہے کہ پولیس آفیسر کی مرنے کی وجہ سے معاملہ زیادہ سنگین ہوا، پروٹیسٹرز پر ڈائریکٹ فائر شروع ہو گئے۔ PLP کا کہنا ہے کہ ہمارے پروٹیسٹرز کو مار کر ان کی لاشوں کو بھی چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اتھارٹیز کی طرف سے، تاکہ بعد میں 4 یا 5 لوگوں کی موت بتا کر انویسٹیگیشن کو یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ PLP چیف سعد حسین رضوی اور انس رضوی کو بھی پولیس کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ کہنا ہے پروٹیسٹرز کا، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ سعد اور انس رضوی جو ہیں وہ وہاں سے فرار ہو گئے تھے اور ابھی ان کی لوکیشن ٹریک کی جا چکی ہے اور انہیں جلد ہی حراست میں دے دیا جائے گا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں TLP کی جانب سے کیا جانے والا یکجہتی کا یہ پروٹیسٹ ایک بھیانک موڑ لے گیا اور ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی۔ پاکستان تحریک لبیک لاہور پہنچی تو ان
को पुलिस की जानिब से रोकने की कोशिश की गई और व्हीकल्स और कंटेनर की मदद से तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया और साद हुसैन रिजवी की जानिब से ये ऐलान सामने आया कि रात को हम लोग यहीं पर स्टे करेंगे और कल आगे बढ़ने के लिए अपना सफ़र शुरू करेंगे, लेकिन पुलिस की जानिब से उन पर शेलिंग और टेयर गैस की भरमार शुरू हो गई और प्रोटेस्टर्स और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी शुरू हो गई। पत्थरों का इस्तेमाल किया प्रोटेस्टर्स ने और जो है पुलिस उन्होंने टेयर गैस और शेलिंग का इस्तेमाल किया इस वक्त तक, लेकिन जब इस हाथापाई में एक ऐसे जो शहीद हुआ तो उसके बाद जो है मामला वो ज़्यादा संगीन हो गया और जनाब डायरेक्ट फायर जो है ना वो प्रोटेस्टर्स पर चले गए। ये कई वीडियोस हैं जिनमें आप लोग देख सकते हैं। तुमने जितनी देर अपने बंदों के नाम गिरवाए ना उतनी देर में यहाँ पे हमारे 5 शहीद हुए हैं। जितनी देर में तूने अपने बंदों के नाम गिरवाए ना वहाँ पे इधर 10 बंदे लाशें गिराई है इन्होंने। कि किस तरह लहू लुहान होकर प्रोटेस्टर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं। पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि हमें पीछे से अथॉरिटीज़ के आर्डर थे कि यहीं पर इन्हें रोकना है क्योंकि इन्होंने इजाज़त नहीं ली थी प्रोटेस्ट की कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट करना है और अपने भाइयों के लिए गज़ा के मुसलमानों के लिए यकजहती का इजहार करना है। ये मौक़िफ़ था पुलिस का और जो है साद हुसैन रिजवी उसका मौक़िफ़ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। 20 नुकात ट्रंप की जानिब से रखे गए हैं, उनमें सबसे जो अहम नुक्ता है वो ये है कि एक अबूरी हुकूमत बिठाई जाएगी इसराइल की फ़लस्तीन में और ये मुआहदा भी किसी किस्म का जो है बेहतर साबित नहीं हुआ। आप लोगों को पता ही है कि किस तरह इसराइल ने फिर से बमबारी करके मुसलमानों को शहीद करना शुरू कर दिया। जहां एक खबर मेरे सामने से गुजरी जो मुझे सोच में डाल देती है कि शुरू हुई तो टीएलपी के कारकुनों ने पथराव, कीलदार डंडों और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। बाद में उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की जिसके नतीजे में शहरियों और कानून नाफिज पुलिस की जानिब से ये कहा गया है, इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि प्रोटेस्टर्स के जानिब से भी गन्स का इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन हकीकत क्या है प्रोटेस्टर्स में से किसी के पास भी कोई गन्स वगैरह नहीं थी और उन्होंने किसी किस्म की गन्स का कोई इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये आप लोग देख सकते हैं कि हर मिनट की फुटेज है, हर मिनट की वीडियो है, इसमें आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस की जानिब से शेलिंग और गन फायर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्टर्स की जानिब से किसी किस्म की कोई भी गन्स या फिर असलहा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पुरअमन एहतजाज बगैर असला के होता है। ये एक और वीडियो आप लोग मुलाहिजा कर सकते हैं जिसमें एक खून से लहू लुहान लड़का कह रहा है कि जितनी देर में अथॉरिटीज़ ने 2 से 3 शहीद बताए हैं उतनी देर में हमारे 10 बंदे शहीद हुए हैं और हमारे ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग का सिलसिला जो है वो अभी भी शुरू है। तो पाकिस्तानी फोर्सेस की ये कोई पहली जारहियत नहीं है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने आवाम के ऊपर इस तरह से फायरिंग की। वो ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें पीटीआई प्रोटेस्टर जो कि बेचारा नमाज पढ़ रहा था और नमाज के बीच ही उसे कंटेनर से धक्का देकर उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं और कुछ में तो ये भी खबर थी कि वो बेचारा मर जाता है। ये किस तरह की मुसलमानी रियासत है या किस तरह की इस्लामी रियासत है जिसमें एक मुसलमान अपनी नमाज भी अदा नहीं कर सकता। और ये तो वही हिसाब बना कि हम लोगों ने इंडिया से या ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की और यहाँ पर भी हमें हमारी अपने मुल्क में भी नमाजों पर या फिर किसी किस्म की कोई सेफ्टी का कोई इतना अच्छा पैमाना नहीं देखने को मिल सकता। कई ऐसे केसेस हैं
जिन पर बात की जा सकती है। खैर 10 दिन के लिए लाहौर में क्रैकडाउन किया जाता है और 144 लगाया जाता है, जिसमें तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को भी बंद किया जाता है और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक को टेररिस्ट बताया जाता है कि ये टेरर पार्टी है। 14 अक्टूबर की सुबह TLP के लिए और भी भयानक साबित हुई, जिसमें ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया पुलिस की जानिब से और एरिया को क्लियर करवाने के लिए पुलिस ने स्ट्रेट गन्स फायर किए ताकि एरिया को क्लियर किया जा सके। अब बात करते हैं कि क्यों पाकिस्तानी मीडिया खामोश रहा हर तरफ से। जिस वक्त ये एहतजाज किया जा रहा था उस वक्त पाकिस्तान के बड़े न्यूज़ चैनल्स पर क्या दिखाया जा रहा था? ट्रंप के वही 20 नुकात और इनको एक्सप्लेन किया जा रहा था। हालांकि पाकिस्तान में ऐसे हालात थे कि हर सेकंड 1-2 बंदे जो है ना वो या तो जख्मी किए जा रहे थे या तो मारे जा रहे थे और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है उस पर हर तरफ से दबाव रहता है। पाकिस्तान के मीडिया को भी इस तरह की नशरियात नशर करने नहीं दी जाती। जैसे कि आप लोग कई खबरें सुन चुके हैं जिसमें जर्नलिस्ट को हिरासा किया जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की जानिब से और जर्नलिस्ट को वही कुछ कहने की इजाज़त है जो कि हुकूमत या गवर्नमेंट जो है ना उनको कहने की इजाज़त देती है, वरना तो उनको या तो हिरासा किया जाता है या फिर उन्हें मार भी दिया जाता है। जैसा कि 2024 के आखिर में एक जर्नलिस्ट की मौत होती है या फिर यूं कहें कि उसका कत्ल होता है। इस तरह के हालात में पाकिस्तानियों के लिए किस तरह से जो है वो रास्ता बनता है या फिर किस तरह से वो इस तरह के हालात में जिसमें पाकिस्तानी को एक और अमन एहतजाज करने की भी इजाज़त नहीं है, में जो है ना तरक्याती काम या फिर ऐसे काम जिसमें खुलकर इंसान अपना जो है ना काम कर सके, वो कैसे हो सकते। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपनी आरा का इजहार ज़रूर करें कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।